Good evening, dear friends. This is the continuation of class 9 geography chapter 1, and today we are going to see air pressure. Dear friends, the element air pressure is the second element in the book, okay, and if we read it properly from the exercise, we shall be able to answer to the questions like explain the relation among temperature and pressure and humidity, how they are related, okay. Then the second answer will be able to give is like how are the variation of how are the variation in atmospheric pressure caused, how, okay, that also will be able to answer. Then the next one will be able to answer is like what is the average atmosphere pressure on the sea level, okay. So reading this particular element, we shall be able to reply to this, okay. Now let us start what is the element contains, okay. Now dear friends, what is this atmospheric pressure, okay, or pressure, atmospheric pressure, in short it is pressure of the air, okay, pressure of the air. Now we have already known the whole world, our earth is surrounded by the atmosphere, okay, and the atmosphere is with the 4 layers, okay. And generally what happens, dear friends, whenever we hear of whenever we speak of air, presence of air we consider as nothing. जब भी हम लोगों को, मान लो कि आप एक चिप्स का पैकेट खोलते हैं, ओके, उसमें खोल के सिर्फ हवा निकालता है और दो तीन पीस इसका चिप्स निकल जाते हैं, तो हम बोलते हैं कि अरे भाई इसमें तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ हवा है, ओके. सो डियर फ्रेंड्स, व्हाट हैपेंस, वी कंसीडर एयर एज नथिंग, बट द फैक्ट इज दैट एयर इज अ गैसियस मैटर, ओके, हवा गैसियस मैटर है, एंड बिकॉज ऑफ दैट एयर हैज़ इट्स मास ऑल्सो, ओके, एंड बीइंग द मास इट हैज़ द प्रेशर, उसका मास होता है इसीलिए उसका प्रेशर भी होता है, ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी नहीं है, ओके. So now if the air has pressure, now if we imagine of a 4 layers or this way, okay, this is the earth surface and the 4 layers above it, okay, this is the earth, and this 4 layers above it. So if we say that air has the pressure, this layer has the pressure, so obviously these 4 layers also will have the pressure of their own, okay. Now having the pressure, the condition of this downmost, okay, that is troposphere. The troposphere is the lowest layer where we are all living, okay. Now that layer also will be having a pressure of all these 3 layers above it. जस्ट मन के चलिए, जस्ट एन एग्जाम्पल, ये ऐसा कैलकुलेट नहीं होता है, बस समझने के लिए हम बता रहे हैं. इफ़ द प्रेशर ऑफ दिस इज़ 50, ओके, इसका अगर 50 है और इसका अगर 50, इसका 50, सबका अगर 50 है, तो जस्ट इमेजिन लोवेस्ट लेयर का जो प्रेशर है उसके ऊपर कितना प्रेशर होगा. शोल्डर के ऊपर में अगर हम बोलेंगे कि एक इंसान के ऊपर दूसरा इंसान, फिर तीसरा इंसान बैठा है, वैसा अगर बोलेंगे तो लोवेस्ट लेयर ट्रोपोस्फियर का ऊपर में लेयर हो जाएगा आपका 150 kgs का. जस्ट एग्जांपल दे रहे हैं, केजीस में इसको हम लोग मेजर नहीं करते हैं, ओके. सो दैट इज़ व्हाट द pressure is, okay, because of the air being a gaseous matter and having mass. Now ये जो layer है और इसका जो pressure है, ये pressure हर जगह में equal नहीं है. This is not same everywhere. It keeps on changing or it differs from place to place, okay. हम जो जिस एग्जाम्पल में 150 बोला, वो हर जगह में 150 रहेगा ऐसा नहीं है, चेंज होता रहता है. द रीज़न बिहाइंड दिस इज number 1 reason air temperature, okay, and number 2 reason surface elevation, okay. Now air temperature क्या है और surface elevation क्या है, and before that let me tell you dear friends, इसमें एक figure out किया गया है that general pressure of air is at the sea level is supposed to be equal to 29.92 inch or 760 mm इन मर्करी कॉलम. ये आपका एक जो क्वेश्चन है, सी लेवल में कितना प्रेशर होता है उसका जो फिगर है, ये फिगर है, ओके. दैट इज़ इन योर बुक पेज नंबर 6. इफ़ यू रीड दैट बुक, that page, you will be getting that particular answer or this figure you will be able to note down, okay. Now air temperature क्या है,
ओके नाउ सी फ्रेंड, पहले तो हम लोग पढ़े कि एयर प्रेशर, ओके प्रेशर है क्या है उसको बता दिया। अब ये प्रेशर में टेम्परेचर आता है। टेम्परेचर कहाँ से आता है? ओके वी आर ऑल अवेयर कि सूरज का जो रोशनी है, ओके सूरज का जो रोशनी है दैट कम्स डाउन, ओके धरती तक आता है, सन रे, ओके सन रे नीचे धरती तक आता है। व्हेन इट कम्स डाउन, ये बहुत सारा लेयर्स को छू के आता है। एंड ऑलरेडी वी हैव सीन द अर्थ इज इन द ओवल शेप, ओके सो उसमें क्या होता है कि सूरज का जो रोशनी है कुछ जगह में, जनरली इक्वेटोरियल रीजन में एकदम शॉर्ट डिस्टेंस में पड़ता है, इट इज़ वेरी शॉर्ट, एंड द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल में बहुत लॉन्गर डिस्टेंस में पड़ता है। सो बिकॉज ऑफ दैट द इक्वेटोरियल रीजन ज़्यादा गर्म रहता है क्योंकि वो सूरज से ज़्यादा नज़दीक में होता है, और साउथ पोल एंड द नॉर्थ पोल सूरज से थोड़ा दूर में होता है। ओके सो जब गर्म होता है, दिस एयर बाय नेचर इज़ कंप्रेसिबल। एयर जो है कंप्रेसिबल है, और इसीलिए हम लोग पढ़े हैं कि एयर को दबाया जा सकता है। लेयर का जो प्रेशर है वो प्रेशर उसमें क्रिएट होता है, कंप्रेसिबल, दब जाता है। ओके सो एंड एयर ऑल्सो बाय नेचर व्हेन इट बिकम्स हॉट, जब गर्म होता है एयर इज़ एक्सपैंडेबल, ये एक्सपांड हो जाता है, एंड इट बिकम्स लाइट। ओके जब भी गर्म होता है। सो व्हाट हैपन्स डियर फ्रेंड्स, जब सूरज का रोशनी उसमें ज़्यादा नज़दीक से पड़ता है, वहाँ का जो एयर है दैट एरिया इन अ पर्टिकुलर एरिया, वहाँ का एयर जो है वो गर्म हो जाता है। ओके जैसे ही वो गर्म होता है, व्हाट हैपन्स, द एयर इन दैट प्लेस बिकम्स लाइट, और वो वहाँ से व्हाट कॉल मूव होने लगता है, लाइट एयर मूव्स अवे। और लाइट एयर जैसे ही एक्सपांड होकर मूव होता है, दैट लाइट एयर हॉट एयर, इट बिकम्स हॉट एंड लाइट, एंड दैट हॉट लाइट एयर हैज़ द कैपेसिटी टू होल्ड मोर मॉइस्चर। ओके मतलब ये है कि पानी जब ठंडा रहता है, अगर उसके ऊपर में अगर कुछ हीट दिया जाता है तो पानी ऑटोमेटिकली, वाटर ड्रॉपलेट्स ऑटोमेटिकली गैस का फॉर्म में आ जाता है। अब वही सेम सिचुएशन होता है कि हवा जो गर्म होकर पानी के ऊपर से अगर गुजरेंगे, क्या होता है, द वाटर ड्रॉपलेट्स विल बिकम वेपर। ओके वेपर होकर हवा के साथ मिल जाता है। सो द हॉट एयर हैज़ द मोर कैपेसिटी टू कैच द कलेक्ट द मॉइस्चर, और वही मॉइस्चर जो वेपर के फॉर्म में होता है, इट चेंजेस इनटू, इट क्रिएट्स द ह्यूमिड एयर। ओके सो हम लोग 3 रिलेशन पढ़े हैं डियर फ्रेंड्स। ओके प्रेशर का बारे में पढ़े, देयर इज ए प्रेशर, ओके and that pressure is affected because of the temperature, and when the temperature is increasing, the air becomes light, moves around, and the whole situation, the air starts collecting moisture, and the humid air is getting collected. So ये तो था हम लोग का फर्स्ट रीज़न कि एयर का प्रेशर क्यों चेंज होता है। द फर्स्ट रीज़न दैट वाज एयर टेम्परेचर। ओके डियर फ्रेंड्स, इन द नेक्स्ट वीडियो हम लोग सीखेंगे दूसरा रीज़न, वो है सरफेस एलिवेशन। सरफेस एलिवेशन के वजह से एयर का जो प्रेशर है वो चेंज होता है, क्यों होता है, कैसे होता है। वी शैल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो। कीप connected, okay, only then you can follow up me in the next video. That's all dear friends, thank you.